بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہمیشہ کی طرح شاد آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ہماری طرف سے جمعۃ المبارک۔ امام صاحب نے آنا ہے تو انشاءاللہ جو آگے کی صورتحال ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور 2-3 بھائی کے کامنٹ تھے کہ بھائی یہ اندھیرے کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بھائی میرا ولاگنگ کا چینل ہے، میں کوئی سجاد سلیم کی طرح ویڈیو نہیں بناتا جس کا نام آپ اکثر کامنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں۔ میرا تو گھر کا فیملی ولاگنگ کا چینل ہے۔ مجھے مطلب جو چیز تھی تمہارے سامنے اوریجنل چیز تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ تو اب باری آتی ہے رافعہ کی۔ رافعہ آپ دعا سلام کر لیں پھر چلتے ہیں، میں چلتا ہوں جمعہ پڑھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں رہے خوش رہے، ہمیشہ کی طرح شاد آباد رہے، ہنستے مسکراتے رہے، آمین ثم آمین۔ تو میں جاؤں اب؟ کوئی فکر والی بات نہیں؟ نہیں، اوکے ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جی۔ باہر دھوپ ہے، کڑک دھوپ ہے، اور جمعہ شمعہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں بریک۔ جمعہ پڑھ لیا ہے جی ماشاءاللہ، اور استاد جی 5 ٹائم کا نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے سوچا آج میں بھی، رافعہ نے حلیم منگوائی تھی تو میں بھی نان ہی کھا لوں۔ میں نے کھانا ابھی تک نہیں کھایا کیونکہ عصر کے بعد کا ٹائم مجھے دیا ہوا تھا امام صاحب نے۔ پریشر ٹھیک ہو گیا؟ بھائی مجنو آ جائے رافعہ۔ نان میں لے آیا ہوں، گرم نان جو ہے نا، اور کیا ہوا؟ جی حلیم یہ گرم ہوگی یا ویسے ہی کھا لو؟ پتہ نہیں ہونے تک ہی ہوتا ہے، گرم ہے اور تو ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ ٹھنڈی ہو چکی ہے تو تھوڑی سی گرم کر دیں ہیں۔ ساتھ میں پتہ کیا کرنا، جی چائے بھی بنا دینا، اچھا کیونکہ جو ہے نا ماشاءاللہ چائے جو ہے پی کر نان کھا لوں گا۔ رافعہ لو جی میں نے روٹی کھا لی ہے، رافعہ آپ روٹی کھا لیے، چائے بھی بنا کے لے آئیے۔ رافعہ ذرا کھاؤ کھانا۔ جی کھا رہی ہیں۔ اچھا بیک کیمرہ سے صحیح اوریجنل تصویر آتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ نا لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہی تھی، قرآن پاک لیفٹ ہینڈ سے پڑھ رہی تھی، تو بھئی لیفٹ ہینڈ سے نہیں پڑھ رہی تھی۔ ابھی اسی چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، میں چلتی ویڈیو میں ہی جو ہے نا کر دوں گا۔ اس ہاتھ نالی کوئی کھانا کھاتا ہے قرآن پڑھتا ہے؟ نہیں ایسے نا گمبل کا مسئلہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اب رافعہ آپ ان کو اپنا لیفٹ ہینڈ دکھائیں۔ لیفٹ ہینڈ یہ والا ہے، یہ لیفٹ ہینڈ ہے، یہ رائٹ نہیں ہے۔ آپ کو رائٹ لگ رہا ہے، یہ رائٹ نہیں ہے، لیفٹ ہینڈ ہے۔ اور رائٹ ہینڈ جو ہے یہ ہے رافعہ کا، جس سے رافعہ کھانا کھا رہی ہے اور جس سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کیمرے کی وجہ سے۔ اب میرا جو لیفٹ ہینڈ ہے یہ ہے، رائٹ ہینڈ یہ ہے، اور لیفٹ ہینڈ سے میں نے گمبل پکڑی ہوئی ہے۔ تو رافعہ آپ لقمہ بنا کے منہ میں ڈالیں، یہ چائے پئیں تو پتہ لگے نا، یہ چیزیں بھی تو بتانی پڑتی ہیں۔ اب رافعہ لیفٹ ہینڈ سے نہیں، رائٹ ہینڈ سے چائے پی رہی ہے۔ اس سے پکڑا ہی نہیں جاتا، اس کے ساتھ تو پکڑا بھی نہیں جاتا۔ میں اس کے نال تجربہ بھی نہیں۔ جی تو آپ بات کر لیتے ہیں نئے گھر کی۔ نئے گھر کی بات یہ ہے کہ بہت سے بہن بھائی ہماری جب ہم اس کرائے کے گھر میں آئے، یہ ہمارا اپنا نہیں کرائے کا گھر ہے، اس گھر میں آئے تو ہماری ویڈیو دیکھنا چھوڑ گئے تھے۔
तो वीडियो इसलिए देखना छोड़ गए थे कि भाई ये घर हमने किराए पे ले लिया। ये इस घर की कहानी अब खुल के सामने आ गई है कि ये घर इसलिए हमें मिला है कि ये घर, इस घर में जो मालिक मकान है वो भी नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि इस घर में मसाइल हैं। अब आपके सामने रात को हम सो नहीं सकते। जब नींद तो कांटों पे भी इंसान को आ जाती है, लेकिन ऐसा मसला है कि जब हमें नींद आती है, हम सो रहे होते हैं तो कोई चीज़ धड़ल से नीचे गिर जाती है या दरवाजे पे दस्तक होने लगती है, जब कोई ऐसा मसला होता है तो हमारी आंख खुल जाती है। बहुत सारे मसाइल हैं इस घर में। तो एक कमेंट था कि ये आपका नया घर देख के हम तो गर्दन गर्दन तक हो गए। तो भाई अब हम भी गर्दन गर्दन तक हो गए इस घर में। इस घर में इंसान आराम से रह नहीं सकता, सो नहीं पाता। इस घर का मसला ये है कि इस घर में नींद नहीं आती। तो जब इंसान को नींद नहीं आती तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी सेहत ख़राब होने लगती है, बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। और वो मसाइल हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा हम तकलीफ़ में हैं। तो बहुत से बहन भाई हमारी ये वीडियो देखना छोड़ गए थे, हमारी वीडियो जो देखते थे वो देखना छोड़ गए, कमेंट करना छोड़ गए कि भाई घर इन्होंने बहुत अच्छा ले लिया। तो ये अच्छा घर हमें भी नहीं पता था, ये हमें सस्ता मिला, हमने ले लिया। इसका रेंट दूसरे जो घर हम छोड़ के आए उससे कम था, लेकिन ये घर हमें बहुत ज़्यादा, इस घर में तकलीफ़ भी है, रहना भी मुश्किल है, बहुत सी परेशानियां भी बनी हुई हैं। सर में दर्द रहता है क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, सर में दर्द रहता है। राफिया की तबीयत भी अब ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो भाई अब दुआ करें हमारे हक़ में। अल्लाह पाक, आप हमारी वीडियो नहीं देखते कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, लेकिन इस घर में जो हमें तकलीफ़ है वो हमें पता है। तो हो सके तो हमारे हक़ में दुआ करना। अब टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ इमाम साहब को लेने, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे वो अब आ जाए मेरे साथ और उसको ये सारी सूरत हाल दिखाते हैं। रात को गली का आपको सीन दिखाया था और कहेंगे, आप कहेंगे मुझे कि भाई उस घर का, उन घरों का विज़िट करा दें अंदर से, तो चलो मैं ये रिस्क भी ले लूँगा। चलो ठीक है, मैं खुद कर लूँगा अपने फेस को कवर। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे में दूर से पकड़ो ना, हाँ दूर से पकड़ो, ठीक है जी। तो कारी साहब ने यहाँ आने से कर दिया है इनकार और उसकी वजह ये है, गली तक आए, वो कहते हैं भाई जो जगह 40 दिन तक जिसकी सफाई ना की जाए, नया घर बनाए, तो वहाँ तो होता है, लेकिन आपकी तो गली में देखकर भाई डर लगता है कि यहाँ कैसे आप लोग रहते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि या तो इस गली में और लोग भी होते तो ठीक था। अगर और लोग नहीं हैं, एक घर आपका, एक नीचे वाले हैं, तो वो भी शाम होती है तो दरवाजे बंद कर लेते हैं, दूसरा घर है तो वो भी शाम होती है दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो चलो मैं आपको पीछे का सीन भी, तो ये देखें जी, ये हमारी गली में बल्ब जल रहा है। अब हम आगे जाएंगे तो कारी साहब कहते हैं नहीं जी, ये किसी आलम को बुलाएं जो सही बहुत बड़ा आलम होगा, तो वो आपको जो है ना वो आपका काम कर सकता है। क्योंकि ये देखिए जी, साथ वाला ये घर है, ये बिल्कुल इस वक्त 7 बजे का टाइम है, या 7 में से भी कुछ टाइम रहता है। तो देख लें, यहाँ आपको दूर दूर तक जितना, ये देखिए दूर दूर तक कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो कारी साहब कहते हैं भाई ये आलम का काम है, जो बड़े होते हैं उनका काम होता है। मैं तो बस कोई दम दरूद दे सकता हूँ, या कोई, ये देखें मैंने लाइट इस तरफ की है तो बिल्कुल अंधेरा छा गया है, तो मैं दम दरूद ही दे सकता हूँ, मैं ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। तो ये घर कब से वीरान पड़े हुए थे, तो यकीनन यहाँ मसाइल हैं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। राफिया, मतलब इस गली में अभी शाम के 7 बजे हैं
ऐसे लगते रात के 12 का टाइम है। लग रहा है ना हाँ ऐसे। जी, रात के 12 हो गए या 1 हो गया। तो अब तो मौसम भी तब्दील हो चुका है ना, जी तो इस वक्त इस गली में कोई भी नहीं है। हाँ, तो सियाले तक के हाल होती। तो सर्दियों में आप देखें कि इस गली में क्या हाल होगा। सर्दियों में सर्दियाँ जैसे धुंध पड़ती है, जब धुंध पड़ती है उस वक्त इस गली में क्या हाल होगा। और अब ये मैंने लाइट आगे की हुई है ना, तो ठीक है, ये मैं लाइट इधर कर लेता हूँ। ये आप देखें ये क्या सूरत हाल है। बंदा न बंदे की जात है। अब लाइट की है, ये अब लाइट इधर कर दी है, तो अब क्या सूरत हाल है। ना कोई बंदा है ना बंदे की जात है। तो ये गोदाम वाले कहते हैं हम 6 बजे के बाद इधर नहीं आते, 6 बजे के बाद हम इधर आना भी नहीं चाहते। ये जो लहसुन का पाउडर बनाते हैं, धनिया का पाउडर बनाते हैं, ये सब चीज़ों का पाउडर बनाते हैं, तो ये कहते हैं भाई हम तो इधर आना ही नहीं चाहते। आ जाए नहीं ना, फिर हम तो अपने घर खड़े हुए हैं, डरने की क्या बात है। तो ये चीज़ें जो हैं, अब सब चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। तो बहुत बड़ी गलती थी हमारी कि हमने यहाँ घर लिया, बहुत बड़ी गलती। ये देखें, ये चीज़ हटा लें, अंधेरा ही अंधेरा है, उजाले वाला कोई सीन नहीं है। दूर से कोई मोटरसाइकिल गुजर जाए तो गुजर जाए, वही जल्दी से वो भी जल्दी से। तो की घंटी बजी। ये हमारे साथ अब जो हो गया है, अब इसका कोई भी हल नहीं है हमारे पास। राफिया बना रही है जी रोटियां, और अब खूबसूरत घर हमारे लिए बन गया है अजाब। और अजाब ऐसे बना है कि कारी साहब ने इनकार कर दिया है आने से। कारी साहब को एक तो थोड़ी सी देर हो गई थी, 2-3 काम उनके और थे वो करने थे, फिर शाम का टाइम हो गया। जब वो गली की नुक्कड़ पे आए हैं और सारी गली की सूरत हाल देखी और बाहर जो लोगों ने घर बना के आधे अधूरे छोड़ रखे हैं इसकी हालत देखी, तो कहते हैं भाई ये किसी आलम को बुलाओ। मैं तो छोटा मोटा तो दम शम दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ये आलम का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और वैसे इस गली को देखकर डर लगता है, इंसान को खौफ आता है। मतलब ये जगह, एक आपका घर है, एक घर साथ और है, तो पूरी गली वीरान पड़ी हुई है, तो आपको यहाँ घर नहीं लेना चाहिए था। तो हम फुल्ली तौर पर इस वक्त फंस चुके हैं, मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अब इस चीज़ का सिर्फ एक ही हल है कि हम दिन रात कुरान पाक पढ़ें, क्योंकि अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं मकान चेंज करूँ। दिन रात कुरान पाक पढ़ें, और जो मोबाइल पर है ये भी सूरतें लगा कर रखें। इसके अलावा हमारे पास इस चीज़ का कोई हल नहीं रहा। और अल्लाह को याद कर, क्योंकि आलम से अगर बात करेंगे तो वो तो जाहिर है अपनी फ़ीस लेगा, और फिर फ़ीस उनकी बढ़ती जाती है। मुझे 2-3-4 बंदों ने भी ऐसे ही कहा है, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ऐसे ही, मतलब जिनके साथ कोई ऐसे मसाइल हुए होंगे तो वो बताते जा रहे हैं कि भाई फिर उनकी फ़ीस भी बढ़ती जाती है, मसाइल भी बढ़ते जाते हैं, किस्से बढ़ते जाते हैं, तो समझो कोई हल नहीं रहा और हम फंस चुके हैं। और अब अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा और आपने दुआ करनी है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अल्लाह पाक खैर करेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखें।